আৰু আপুনি চাই আছে নিউজ স্কেন আৰু নিউজ স্কেনৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে ৰহস্যৰ মাজত সোমাই পৰা এটা বিষয় এটা খবৰ আমি পুনৰ এবাৰ এই ঘটনা সন্দৰ্ভত জনাব বিচাৰিছো এটা এনকাউন্টাৰ সংঘটিত হৈছিল উদালগুৰিত আৰু তাত কোৱা হৈছিল যে ডকাইতৰ দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইতৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু কাৰ মৃত্যু হৈছিল প্ৰকৃততে তাকে লৈ এটা চলি আছে এনেকুৱা ধৰণৰ অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগ বা বিচাৰি উলিওৱাৰ বা খান্দি উলিওৱাৰ দাবী আমি এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছো খান্দি উলিওৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আজি কেনাৰাম বড়োৰ মৃতদেহ উপায়ুক্তই নিৰ্দেশ দিলে খান্দি উলিয়াব পাৰিব মৃতদেহ কেনাৰামৰ সমাধিস্থলীত উপস্থিত হৈছে প্ৰশাসন আৰু আৰক্ষীৰ লোক ইতিমধ্যে মৃতদেহটো ডিম্বেশ্বৰ মুছাহাৰী বুলি দাবী কৰিছে পৰিয়ালে মৃতদেহ বিচাৰি আৰক্ষী অধীক্ষক উপায়ুক্তৰ কাষ চাপিছে পৰিয়াল উল্লেখযোগ্য যে পুনৰ এবাৰ আমি ঘটনা সন্দৰ্ভত ক'ব বিচাৰিম যে উদালগুৰিত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল এটা দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইতৰ মৃত্যু হোৱা বুলি আৰক্ষীয়ে জনাইছিল এনকাউন্টাৰত মৃত্যু হোৱা বুলি জনাইছিল এখন ফটো প্ৰকাশ পাইছিল আৰু সেই ফটো চোৱাৰ পিছত ডিম্বেশ্বৰ মুছাহাৰী পৰিয়ালে দাবী কৰিছিল যে সেয়া দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত কেনাৰাম বড়ো নহয় যাৰ মৃত্যু হৈছে সেয়া হৈছে ডিম্বেশ্বৰ মুছাহাৰী যি তেওঁৰ স্বামী বা তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ সদস্য পুত্ৰ গতিকে তেওঁলোকে দাবী কৰিছিল তেওঁলোকে বিচাৰিছিল মৃতদেহটো আৰু সেই মৃতদেহ বিচাৰি উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈছিল তাৰোপৰি যিহেতু তেওঁলোকৰ য'ত ঘৰ বাক্সা জিলাৰ গোবৰ্ধনাৰ হালবাৰীৰ জেংৰেং পাৰাৰ পৰা তেওঁলোকে উদালগুৰি গৈ পাইছিল উদালগুৰি গৈ পাই তেওঁলোকে যেহেতু 4 ঘণ্টা ধৰি তেওঁলোকে কথা পাতিছিল আৰক্ষীৰ সৈতে প্ৰায় নিশ্চিত হৈছিল তেওঁলোকে কৈছিল যে যাৰ মৃত্যু হৈছিল সেয়া কেনাৰাম বড়ো নহয় সেয়া তেওঁলোকৰ হে সদস্য ডিম্বেশ্বৰ মুছাহাৰী আনহাতে সমগ্ৰ বিষয়টো তেতিয়া ৰহস্যৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰে যেতিয়া কেনাৰাম বড়ো পৰিয়ালেও কয় যে সেয়া কেনাৰাম বড়োৰে মৃতদেহ কেনাৰাম বড়োক তেওঁলোকে কিয় চিনি নাপাব গতিকে তেওঁলোকে সেই মৃতদেহ প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পিছতে ইতিমধ্যে সমাধিস্থও কৰা হৈছে গতিকে তেওঁলোকে কোৱা নাই তেওঁলোকৰ কথা যদিহে কেনাৰাম নহয় তেতিয়াহ'লে কেনাৰাম কলৈ গ'ল কিন্তু যদিহে ডিম্বেশ্বৰ নহয় ডিম্বেশ্বৰ কলৈ গ'ল কাৰণ দুয়োজন একেলগে ওলাই আহিছিল বুলি ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে ডিম্বেশ্বৰ মুছাহাৰী পৰিয়ালৰ লোকে কৈছে যে কেনাৰাম আহি ডিম্বেশ্বৰৰ ঘৰৰ পৰা বিয়া খাবলৈ বুলি লৈ গৈছিল তাৰ পিছৰে পৰা দুয়োগৰাকীৰে সন্ধান নাই শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি কেনাৰামৰ বাইকখন উদ্ধাৰ হৈছে এটা কথা হৈছে যে কেনাৰাম কলৈ গ'ল যদিহে কেনাৰামৰ মৃত্যু হোৱা নাই কেনাৰাম নিৰুদ্দেশ হৈ আছে নেকি পলাই আছে নেকি নে কেনাৰামৰে পৰিকল্পনা আছিল কিয়নো কেনাৰাম বড়ো হৈছে এটা দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত গতিকে আৰক্ষীৰ সৈতে মিলি পৰিকল্পনা কৰিছিল নেকি কোনো এগৰাকী আৰক্ষীৰ সৈতে আনহাতে ডিম্বেশ্বৰ মুছাহাৰীৰো যেহেতু কেছ আছে কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈ আছে বহুকেইটা গোচৰ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আছে 2020 চনতো তেওঁ আটক হৈছিলে গতিকে ডিম্বেশ্বৰ মুছাহাৰীৰ বিৰুদ্ধেও বহুখিনি অভিযোগ আছে গতিকে তেওঁ জেলৰ ভাত খাই থৈছে এতিয়া ডিম্বেশ্বৰ মুছাহাৰী প্ৰকৃততে মৃত্যু হ'ল নে কেনাৰাম বড়োৰ মৃত্যু হ'ল সেয়া এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই বা সেয়া এতিয়ালৈকে স্পষ্ট নহয় আৰক্ষীৰ তথ্য অনুসৰি যেহেতু আৰক্ষীয়ে এনকাউন্টাৰ কৰিছিল এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছিল দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইতৰ মৃত্যু হৈছিল সেই খবৰ যেহেতু কোৱা হৈছিল কিন্তু যেতিয়া ফটো ছপা পালে তেতিয়া কোৱা হ'ল যে সেয়া আচলতে সেই গৰাকীৰ নহয় সেই দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত কেনাৰামৰ নহয় ইয়া হৈছে ডিম্বেশ্বৰ মুছাহাৰী তাতে লাগিল কেনা আৰু এই কেনা এতিয়া বাহি গৈ আছে এখন বাইক যেহেতু পোৱা গৈছে এখন কোৱা হৈছে কেনাৰাম বড়োৰ বাইক আৰু কেনাৰামৰ পৰিয়ালে কৈছে যদিহে কেনাৰামৰ মৃত্যু হোৱা নাই যদিহে এইটো মৃতদেহ কেনাৰামৰ নহয় তেতিয়াহ'লে কেনাৰাম বড়ো ক'ত কেনাৰাম বড়ো নহালৈকে মৃতদেহ তেওঁলোকে উলিয়াবলৈ নিদিয়ে কিন্তু এতিয়া জানিব পৰা অনুসৰি যেহেতু উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত ঢাপলি মেলিছে ডিম্বেশ্বৰ মুছাহাৰী পৰিয়ালটো গতিকে উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা যদি অনুমতি পায় আজি উলিওৱা হ'ব যেহেতু ইতিমধ্যে কোৱাই হৈছে পুতি থোৱা হৈছে গতিকে মৃতদেহ উলিয়াই অনা হ'ব খান্দি উলিয়াই অনা হ'ব তাৰপিছতে প্ৰকৃত কথাটো ওলাই পৰিব এতিয়া মানে আমাক লাগে মানে ন্যায় লাগে ডেড বডিখিনি লাগে এইটো কেনাৰামৰ ডেড বডি নহয় এইটো মোক লাগে এতিয়া ডেড বডিটো মোক ওলাই দিব লাগিব এতিয়া আমি এটা ইমান দূৰৰ পৰা ইয়াৰলৈকে ডেড বডি বিচাৰ কৰি আহিছোঁ গিছোঁ এইফালে থানাত শুনা গিছোঁ থানাৰ পৰা ইয়াতে পঠাইছে কিবা ইয়াৰ পৰা ইয়াতে পঠাইছে এতিয়া আমাক লাগে আৰু সেইটো আমাক খালি ডেড বডিখিনি লাগে আৰু সেয়ে আৰু কেনেকৈ আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল ডেড বডিটো কালি আমি মোবাইলত চাই পিনে কৰিছোঁ কি নাম তেখেতৰ আমাৰ ইয়াৰ নাম হ'ল ডিম্বেশ্বৰ মুছাহাৰী ডিম্বেশ্বৰ মুছাহাৰী এতিয়া যেতিয়া আমিতো ফটোটো চাইছোঁ তাতে দি আছে কেনাৰামৰ ইফালে দি আছে মানুহটো ছবিটো কিবা হে ডিম্বেশ্বৰ মুছাহাৰীহে ছবিটো আছে কিবা মৰি থকা মানুহটোৰ আছে ছবিটো কিবা ডিম্বেশ্বৰ মুছাহাৰী ইফালে ফটোটো দি আছে কেনাৰামৰ সেনেকৈ কেনেকৈ দিব পাৰে তাহোন মানুহটো চিনি পাইছে নে নাই আপোনালোকৰ ঘৰত গৈছিল নেকি কেনাৰাম কেতিয়াবা গৈছিল যাৱাৰ কাৰণেতো যাই পিনিতো মাটি লৈ আহিছে সেই মাটি লৈ আহিছে আনাটো বৃহস্পতিবাৰে দিনা আহিছে আৰু এই খবৰ আমি পাছলৈ আমি জনাই যাম অব্যাহত ৰাখিম কিন্তু এতিয়া আমি জনাব বিচাৰিছো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ইতিমধ্যে মন কি বাত আৰম্ভ হৈছে আগবঢ়াই লম गोवा के रहने वाले गुरुदत्त वांटेकर जी ने गांधी जी की रंगोली बनाई जबकि पुडुचेरी के
मालातिसेल्वन जी ने भी आजादी के कई महान सेनानियों पर अपना फोकस रखा। देशभक्ति गीत प्रतियोगिता की विजेता टी विजय दुर्गा जी आंध्र प्रदेश की हैं। उन्होंने तेलुगु में अपनी एंट्री भेजी थी। वे अपने क्षेत्र के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी नरसिम्हा रेड्डी गारू जी से काफी प्रेरित रही है। आप भी सुनिए विजय दुर्गा जी की एंट्री का यह हिस्सा। రేనాటి సూర్యుడా వీర నరసింహుడా భారత స్వాతంత్ర సమరపు అంకురానివి నీవురా అంకుశానివి నీవురా అంకుశానివి నీవురా తెల్లదొరల నీతి లేని నిరంకుశపు దమన కాండకు సలసలమని మరిగిన నీ నెత్తుటి ఎర్రని కాకలు రేనాటి సూర్యుడా వీర నరసింహుడా। तेलुगु के बाद अब मैं आपको मैथिली में एक क्लिप सुनाता हूं। इसे दीपक वत्स जी ने भेजा है। उन्होंने भी इस प्रतियोगिता में पुरस्कार जीता है। भारत दुनियाक शान छैयो भैया हमर देश महान छै। तीन बगल छै समुद्र से घेरल उत्तर में कैलाश बलवान छै। गंगा यमुना कृष्णा कावेरी कोसी कमला बलान छै। हमर देश महान छैयो भैया तिरंगे में बसल प्राण छै। साथियों, मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। प्रतियोगिता में आई इस तरह की एंट्रीज की लिस्ट बहुत लंबी है। आप संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर इन्हें अपने परिवार के साथ देखें और सुनें। आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, बात बनारस की हो, शहनाई की हो, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी की हो, तो स्वाभाविक है कि मेरा ध्यान उस तरफ जाएगा ही। कुछ दिन पहले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार दिए गए। ये पुरस्कार म्यूजिक और परफॉर्मिंग आर्ट्स के क्षेत्र में उभर रहे प्रतिभाशाली कलाकारों को दिए जाते हैं। ये कला और संगीत जगत की लोकप्रियता बढ़ाने के साथ ही इसकी समृद्धि में अपना योगदान दे रहे हैं। इनमें वे कलाकार भी शामिल हैं जिन्होंने उन इंस्ट्रूमेंट्स में नई जान फूंकी है जिनकी पॉपुलैरिटी समय के साथ कम होती जा रही थी। अब आप सभी इस ट्यून को ध्यान से सुनिए। क्या आप जानते हैं ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? संभव है आपको पता न भी हो। इस वाद्य यंत्र का नाम सूर सिंगार है और इस धुन को तैयार किया है जॉयदीप मुखर्जी ने। जॉयदीप जी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार से सम्मानित युवाओं में शामिल है। इस इंस्ट्रूमेंट की धुनों को सुनना पिछले 50 और 60 के दशक से ही दुर्लभ हो चुका था, लेकिन जॉयदीप सूर सिंगार को फिर से पॉपुलर बनाने में जी जान से जुटे हैं। उसी प्रकार बहन उप्पलपू नागमणि जी का प्रयास भी बहुत ही प्रेरक है, जिन्हें मैंडोलिन में कार्नाटिक इंस्ट्रूमेंटल के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। वहीं संग्राम सिंह सुहास भंडारी जी को वारकरी कीर्तन के लिए यह पुरस्कार मिला है। इस लिस्ट में सिर्फ संगीत से जुड़े कलाकार ही नहीं है। वी दुर्गा देवी जी ने नृत्य की एक प्राचीन शैली करकट्टम के लिए यह पुरस्कार जीता है। इस पुरस्कार के एक और विजेता राजकुमार नायक जी ने तेलंगाना के 31 जिलों में 101 दिन तक चलने वाली पेरिनी ओडिसी का आयोजन किया था। आज लोग इन्हें पेरिनी राजकुमार के नाम से जानने लगे हैं।
पेरिनी नाट्यम भगवान शिव को समर्पित एक नृत्य है जो काकतीय डायनेस्टी के दौर में काफी लोकप्रिय था। इस डायनेस्टी की जड़ें आज के तेलंगाना से जुड़ी हैं। एक अन्य पुरस्कार विजेता साइखोम सुरचंद्रा सिंह जी है। ये मैतेई पुंग इंस्ट्रूमेंट बनाने में अपनी महारत के लिए जाने जाते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट का मणिपुर से नाता है। पूरन सिंह एक दिव्यांग कलाकार है जो राजुला, मलुशाही, नेओली, हुड़का बोल, जागर जैसे विभिन्न म्यूजिक फॉर्म्स को लोकप्रिय बना रहे हैं। इन्होंने इनसे जुड़ी कई ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी तैयार की है। उत्तराखंड के फोक म्यूजिक में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर पूरन सिंह जी ने कई पुरस्कार भी जीते हैं। समय की सीमा के चलते मैं यहाँ सभी अवार्डीज की बातें भले न कर पाऊं, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप उनके बारे में जरूर पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये सभी कलाकार परफॉर्मिंग आर्ट्स को और पॉपुलर बनाने के लिए ग्रास रूट्स पर सभी को प्रेरित करते रहेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, तेजी से आगे बढ़ते हमारे देश में डिजिटल इंडिया की ताकत कोने कोने में दिख रही है। डिजिटल इंडिया की शक्ति को घर घर पहुंचाने में अलग अलग ऐप्स की बड़ी भूमिका होती है। ऐसा ही एक ऐप है ई संजीवनी। इस ऐप से टेली कंसल्टेशन यानी दूर बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डॉक्टर से अपनी बीमारी के बारे में सलाह कर सकते हैं। इस ऐप का उपयोग करके अब तक टेली कंसल्टेशन करने वालों की संख्या 10 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। आप कल्पना कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 10 करोड़ कंसल्टेशंस, मरीज और डॉक्टर के साथ अद्भुत नाता। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस उपलब्धि के लिए मैं सभी डॉक्टरों और इस सुविधा का लाभ उठाने वाले मरीजों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारत के लोगों ने तकनीक को कैसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया है, ये इसका जीता जागता उदाहरण है। हमने देखा है कि कोरोना के काल में ई संजीवनी ऐप, इसके जरिए टेली कंसल्टेशन लोगों के लिए एक बड़ा वरदान साबित हुआ है। मेरा भी मन हुआ कि क्यों ना इसके बारे में मन की बात में हम एक डॉक्टर और एक मरीज से बात करें, संवाद करें और आप तक बात को पहुंचाएं। हमें जानने की कोशिश करें कि टेली कंसल्टेशन लोगों के लिए आखिर कितना प्रभावी रहा है। हमारे साथ सिक्किम से डॉक्टर मदन मणि जी हैं। डॉक्टर मदन मणि जी रहने वाले सिक्किम के ही हैं, लेकिन उन्होंने एमबीबीएस धनबाद से किया और फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एमडी किया। वो ग्रामीण इलाकों के सैकड़ों लोगों को टेली कंसल्टेशन दे चुके हैं। नमस्कार, नमस्कार मदन मणि जी। जी नमस्कार सर। मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ। जी जी सर। आप तो बनारस में पढ़े हैं? जी मैं बनारस में पढ़ा हूँ सर। आपका मेडिकल एजुकेशन वहीं हुआ? जी जी। तो जब आप बनारस में थे तब का बनारस और आज बदला हुआ बनारस कभी देखने गए कि नहीं गए? जी प्रधानमंत्री जी, मैं जा नहीं पाया हूँ जब से मैं वापस सिक्किम आया हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि काफी बदल गया है। तो कितने साल हो गए आपको बनारस छोड़े? बनारस 2006 से छोड़ा हुआ हूँ। ओह, फिर तो आपको जरूर जाना चाहिए। जी जी। अच्छा, मैंने फोन तो इसलिए किया कि आप सिक्किम के अंदर दूर सुदूर पहाड़ों में रह करके वहाँ के लोगों को टेली कंसल्टेशन का बहुत बड़ी सेवाएं दे रहे हैं। जी। मैं मन की बात के श्रोताओं को आपका अनुभव सुनाना चाहता हूँ। जी। जरा मुझे बताइए कैसा अनुभव रहा है? अनुभव बहुत बढ़िया रहा प्रधानमंत्री जी। क्या है कि सिक्किम में बहुत नजदीक का जो पीएचसी है, वहाँ जाने के लिए भी लोगों को गाड़ी में चढ़ के कम से कम 100-200 रुपया लेके जाना पड़ता है।
और डॉक्टर मिले नहीं मिले ये भी एक प्रॉब्लम है। तो टेलीकंसल्टेशन के माध्यम से लोग हम लोग से सीधे जुड़ जाते हैं, दूर दराज के लोग। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के जो CHOs होते हैं वो लोग हम लोग से कनेक्ट करवा देते हैं और हम लोग का जो पुराने उनके बीमारी है, उनकी रिपोर्ट्स, उनका अभी का प्रेजेंट कंडीशन, सारी चीजें हम लोग को वो बता देते हैं। यानी डॉक्यूमेंट ट्रांसफर करते हैं? जी, डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर भी करते हैं और अगर ट्रांसफर नहीं कर सके तो वो पढ़ के हम लोग को बताते हैं। वहाँ का वेलनेस सेंटर का डॉक्टर बताता है? जी, वेलनेस सेंटर में जो CHO रहता है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, और जो पेशेंट है वो अपनी कठिनाइयां आपको सीधी बताता है? जी, पेशेंट भी कठिनाई हमको बताता है। फिर पुराने रिकॉर्ड्स देख के फिर अगर कोई नई चीजें हम लोग को जानना है, जैसे किसी का चेस्ट ऑस्कल्टेट करना है, अगर उसको पैर सूजा है कि नहीं, अगर CHO ने नहीं देखा है तो हम लोग उसको बोलते हैं कि जाके देखो सूजन है नहीं है, आंख देखो, एनीमिया है कि नहीं है, उसका अगर खांसी है तो चेस्ट को ऑस्कल्टेट करो और पता करो कि वहाँ पे साउंड है कि नहीं। आप वॉइस कॉल से बात करते हैं या वीडियो कॉल का भी उपयोग करते हैं? जी, वीडियो कॉल का उपयोग करते हैं। तो आप पेशेंट को भी आप भी देखते हैं? पेशेंट को भी देख पाते हैं। जी, पेशेंट को क्या फीलिंग आता है? पेशेंट को अच्छा लगता है क्योंकि डॉक्टर को नजदीक से वो देख पाता है। उसको कंफ्यूजन रहता है कि उसका दवा घटाना है, बढ़ाना है, क्योंकि सिक्किम में ज्यादातर जो पेशेंट होते हैं वो डायबिटीज, हाइपरटेंशन के आते हैं और एक डायबिटीज और हाइपरटेंशन के दवा को चेंज करने के लिए उसको डॉक्टर मिलने के लिए कितना दूर जाना पड़ता है, लेकिन टेलीकंसल्टेशन के थ्रू वहीं मिल जाता है और दवा भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में फ्री ड्रग्स इनिशिएटिव के थ्रू मिल जाता है, तो वहीं से दवा भी लेके जाता है वो। अच्छा मदन मणि जी, आप तो जानते ही हैं कि पेशेंट का एक स्वभाव रहता है कि जब तक वो डॉक्टर आता नहीं है, डॉक्टर देखता नहीं है, उसको संतोष नहीं होता है और डॉक्टर को भी लगता है जरा मरीज को देखना पड़ेगा। अब आज सारा ये टेलीकॉम कंसल्टेशन होता है, तो डॉक्टर को क्या फील होता है, पेशेंट को क्या फील होता है? जी, वो हम लोग को भी लगता है कि अगर पेशेंट को लगता है कि डॉक्टर को देखना चाहिए तो हम लोग को जो जो चीजें देखना है वो हम लोग CHO को बोल के वीडियो में ही हम लोग देखने के लिए बोलते हैं। और कभी कभी तो पेशेंट को वीडियो में ही नजदीक में आके उसकी जो परेशानियां हैं, अगर किसी को चर्म का प्रॉब्लम है, स्किन का प्रॉब्लम है, तो वो हम लोग को वीडियो से ही दिखा देते हैं, तो संतुष्टि रहता है उन लोगों को। और बाद में उसका उपचार करने के बाद उसको संतोष मिलता है? क्या अनुभव आता है? पेशेंट ठीक हो रहे हैं? जी, बहुत संतोष मिलता है, हमको भी संतोष मिलता है सर, क्योंकि मैं अभी स्वास्थ्य विभाग में हूँ और साथ साथ में टेलीकंसल्टेशन भी करता हूँ, तो फाइल के साथ साथ पेशेंट को भी देखना मेरे लिए बहुत अच्छा सुखद अनुभव रहता है। एवरेज कितने पेशेंट आपको टेलीकंसल्टेशन के साथ आते होंगे? अभी तक मैंने 536 पेशेंट देखे हैं। ओह, यानी कि आपको काफी इसमें महारत आ गई है। जी, अच्छा लगता है देखने में। चलिए, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए आप सिक्किम के दूर सुदूर जंगलों में, पहाड़ों में रहने वाले लोगों की इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं और खुशी की बात है कि हमारे देश के दूर दराज क्षेत्र में भी टेक्नोलॉजी का इतना बढ़िया उपयोग हो रहा है। चलिए, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। साथियों, डॉक्टर मदन मणि जी की बातों से साफ है कि ई-संजीवनी ऐप किस तरह उनकी मदद कर रहा है। डॉक्टर मदन जी के बाद अब हम एक और मदन जी से जुड़ते हैं। ये उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के रहने वाले मदन मोहनलाल जी हैं। अब ये भी संयोग है कि चंदौली भी बनारस से सटा हुआ है। आइए मदन मोहन जी से जानते हैं कि ई-संजीवनी को लेकर एक मरीज के रूप में उनका अनुभव क्या रहा है। मदन मोहन जी प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार साहब। नमस्कार। अच्छा, मुझे बताया गया है कि आप डायबिटीज के मरीज हैं जी। और आप टेक्नोलॉजी का उपयोग करके टेली कंसल्टेशन कर करके अपनी बीमारी के संबंध में मदद लेते हैं। जी। एक पेशेंट के नाते, एक दर्दी के रूप में मैं आपके अनुभव सुनना चाहता हूं ताकि मैं देशवासियों तक इस बात को पहुंचाना चाहूं कि आज की टेक्नोलॉजी से हमारे गांव में रहने वाले लोग भी किस प्रकार से इसका उपयोग कर सकते हैं। जरा बताइए कैसे करते हैं। ऐसा है सर कि हॉस्पिटलें दूर हैं और जब डायबिटीज हमको हुआ तो हमको जो 5-6 किलोमीटर दूर जाकर इलाज करना पड़ता था, दिखाना पड़ता था। और जब से व्यवस्था आप द्वारा बनाई गई है, इससे है कि मैं जाता हूँ, हमारा जांच होता है, हमको
बाहर के डॉक्टरों से बात भी करा देती हैं और दवा भी दे देती हैं। इससे हमको बड़ा लाभ है और लोगों को भी लाभ है इससे। तो एक ही डॉक्टर हर बार आपको देखते हैं कि डॉक्टर बदलते जाते हैं? जैसा उनको नहीं समझ जिस डॉक्टर को दिखा देती हैं, वही बात करके दूसरे डॉक्टर से हमसे बात कराती हैं। और डॉक्टर आपको जो गाइडेंस देते हैं वो आपको पूरा फायदा होता है उससे? हमको फायदा होता है, हमको उससे बहुत बड़ा फायदा है और गांव के लोगों को भी फायदा उससे है। सभी लोग वहाँ पहुँचते हैं कि भैया हमारा बीपी है, हमारा शुगर है, टेस्ट करो, जांच करो, दवा बताओ। अब पहले तो 5-6 किलोमीटर दूर जाते थे, लंबी लाइन लगी रहती थी, पैथोलॉजी में लाइन लगी रहती थी, एक एक दिन का समय नुकसान होता था। मतलब आपका समय भी बच जाता है और पैसा भी व्यय होता था। यहाँ पे निःशुल्क सेवाएं सब हो रही हैं। अच्छा, जब आप अपने सामने डॉक्टर को मिलते हैं तो एक विश्वास बनता है, चलो भाई डॉक्टर हैं, उन्होंने मेरी नाड़ी देख ली है, मेरी आंखें देख ली है, मेरा जीभ को भी चेक कर लिया है, तो एक अलग फीलिंग आता है। अब ये टेली कंसल्टेशन करते हैं तो वैसा ही फिर संतोष होता है आपको? हाँ, संतोष होता है कि हमारी नाड़ी पकड़ रहे हैं, आला लगा रहे हैं, ऐसा मुझे महसूस होता है। और हमको बड़ा तबीयत खुश होती है कि भाई इतनी अच्छी व्यवस्था आप द्वारा बनाई गई है, जिससे कि हमको यहाँ परेशानी से जाना पड़ता था, गाड़ी भाड़ा देना पड़ता था, वहाँ लाइन लगाना पड़ता था, और सारी सुविधाएं हमको घर बैठे बैठे मिल रही है। चलिए मदन मोहन जी, मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। उम्र के इस पड़ाव पर भी आप टेक्नोलॉजी को सीखे हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। औरों को भी बताइए ताकि लोगों का समय भी बच जाए, धन भी बच जाए और उनको जो भी मार्गदर्शन मिलता है उससे दवाइयाँ भी अच्छे ढंग से हो सकती हैं। हाँ, और क्या। चलिए, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको मदन मोहन जी। बनारस को साहब आपने काशी विश्वनाथ को एकदम बना दिया, डेवलपमेंट कर दिया, ये आपको बधाई हमारे तरफ से। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हमने क्या बनाया जी, बनारस के लोगों ने बनारस को बनाया है। नहीं तो हम तो माँ गंगा की सेवा के लिए माँ गंगा ने बुलाया है, बस और कुछ नहीं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। प्रणाम जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। साथियों, देश के सामान्य मानवी के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वालों के लिए ई संजीवनी जीवन रक्षा करने वाला ऐप बन रहा है। ये है भारत की डिजिटल क्रांति की शक्ति और इसका प्रभाव आज हम हर क्षेत्र में देख रहे हैं। भारत के यूपीआई की ताकत भी आप जानते ही हैं। दुनिया के कितने ही देश इसकी तरफ आकर्षित हैं। कुछ दिन पहले ही भारत और सिंगापुर के बीच यूपीआई पे नाउ लिंक लॉन्च किया गया। अब सिंगापुर और भारत के लोग अपने मोबाइल फोन से उसी तरह पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं जैसे वे अपने अपने देश के अंदर करते हैं। मुझे खुशी है कि लोगों ने इसका लाभ उठाना शुरू कर दिया है। भारत का ई संजीवनी ऐप हो या फिर यूपीआई, ये ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने में बहुत मददगार साबित हुए हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, जब किसी देश में विलुप्त हो रहे किसी पक्षी की प्रजाति को, किसी जीव जंतु को बचा लिया जाता है तो उसकी पूरी दुनिया में चर्चा होती है। हमारे देश में ऐसी अनेकों महान परंपराएं भी हैं जो लुप्त हो चुकी थी, लोगों के मन मस्तिष्क से हट चुकी थी, लेकिन अब इन्हें जनभागीदारी की शक्ति से पुनर्जीवित करने का प्रयास हो रहा है। तो इसकी चर्चा के लिए मन की बात से बेहतर मंच और क्या होगा। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो जानकर वाकई आपको बहुत प्रसन्नता होगी, विरासत पर गर्व होगा। अमेरिका में रहने वाले श्रीमान कंचन बैनर्जी ने विरासत के संरक्षण से जुड़े